ओके जी। बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 20. A 26-year-old primigravida presented to labor at 18 weeks of gestation with a fever 38.6, rigors, abdominal and loin pain. She was diagnosed with pyelonephritis and received IV antipyretics and fluid hydration. What is the recurrence of pyelonephritis in her current pregnancy? लाइक उसको पहले पायलोनेफ्राइटिस हुआ था तो सेम प्रेगनेंसी में रिकरेंस कितना रिस्क है रिकरेंस का? आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स इन चैट. रबिया सेइंग 10 to 19. बाकी लोग? ओके. सो दिस परसेंटेज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर इट, क्योंकि यूटीआई से रिलेटेड सारी परसेंटेजेस आती हैं. इंसिडेंस, रिकरेंस, और फिर वो पायलोनेफ्राइटिस में कितना कन्वर्ट होता है वो, एंड पायलोनेफ्राइटिस की रिकरेंस. अच्छा, question number 21. A 32-year-old woman in her first pregnancy was admitted to hospital at 29 weeks. 29 weeks of gestation because of colicky pain in the left loin, vomiting, fever of 37.8 degrees Celsius. Investigations showed that she has a left ureteric stone. The patient is counseled and offered conservative management with painkillers, antibiotics, and hydration. What is the success rate of conservative treatment? बेसिकली यूरेट्रिक कोलिक की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट पूछ रहे हैं वो. रेनल कैलकुलाई. Imrana is saying 80%, Rabia is saying 80%. So you know the answer. This is also important question. Okay. 22. A 48-year-old woman presented to gynae outpatient clinic complaining of hesitancy and dribbling after micturition. Uroflowmetry was requested and you have the result. What is the normal female maximum flow rate? Very easy question. Yes, chats please. Rabia is saying 15 ml. Rest of people? Okay, very good. आता है यार तुम लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से. Okay, जी. Question number 28. A 66-year-old woman is booked for a urodynamic study because of frequency, urgency, and leaking of urine. The urodynamic study shows maximum bladder capacity of 200 ml. The abdominal pressure remained unchanged. Vesicle and detrusor were consistently rising by 2 centimeter H2O for every 30 ml of infused fluid into the bladder. At the end of infusion, vesicle and detrusor remain raised. There was no leak on cuffing at the end of the filling phase. So this urodynamic study उन्होंने सारी filling phase की दी है आपको. पेशेंट को कंप्लेन है फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी लीकिंग ऑफ यूरिन की. Maximum bladder capacity 200 ml, and with each 30 ml infusion of fluid into the bladder, detrusor as well as vesical pressure is increasing, but the abdominal pressure is unchanged. And there is no leaking on cuffing. Provoked leaking भी नहीं है. So what is the most likely diagnosis? Detrusor overactivity, low compliance bladder, mixed urinary stress and detrusor incontinence, normal urodynamic study results, या फिर urodynamic stress incontinence. हाँ जी. Question number 23. Answers, please.
Okay, Rabia is saying कि this is low compliance bladder as 200 ml है capacity low. What is the normal maximum capacity of bladder? ये भी बता दो. 500 to 600 ml, 400 to 600 ml और एवरेज 500। जी, एवरेज 500. शाबाश. ठीक है. सो पेशेंट की मैक्सिमम ब्लडर कैपेसिटी ही बहुत कम है, और फिर इतनी कम कैपेसिटी पर जैसे ही फ्लूइड इन्फ्यूज हो रहा है, ब्लडर स्ट्रेच हो रहा है, और डिट्रूजर और वेजाइकल प्रेशर्स हमें मिल रहे हैं रेज्ड. अदरवाइज एब्डोमिनल प्रेशर अनचेंज्ड है और कफिंग पर पेशेंट को कोई लीकिंग नहीं है, तो बाकी कोई भी डायग्नोसिस नहीं बन रही. दिस इज द लो कंप्लायंस ब्लडर. ठीक है. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है. Okay, you are teaching a medical students about urodynamic studies. They are confused about detrusor pressure. So how is detrusor pressure calculated? अब ये तुम लोग मुझे बस फार्मूला बता दो, ये रीड करने की जरूरत नहीं है हमको. किस में से क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर डिट्रूजर प्रेशर आ जाता है? सबके आंसर्स चाहिए मुझे गर्ल्स. बी एक्टिव. मैम हम ना इसमें एब्डोमिनल से ना, प्रेशर ऑफ एब्डोमिनल से वेजाइकल प्रेशर को माइनस करता है ना, डिट्रूजर प्रेशर आ जाता है। ठीक है. तो बी ऑप्शन। ओके. बुशरा सेज इट्स बी. रेस्ट ऑफ पीपल. इमराना, सोबिया. दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन. Even you can solve it by reading Eurodynamic chapter from 10 teacher as well. Gynae की 10 teacher. Shabash Imrana. Okay, so all you know that we have to subtract the vagal pressure from abdominal pressure, तो हमको डिट्रूजर का प्रेशर मिल जाता है. ठीक है. इट्स बी. Question number 25. The renal plasma flow increases in pregnancy, leading to increased GFR, creatinine clearance, and protein excretion. By how much does the renal plasma flow increases in pregnancy? Normal changes in kidney and its function in the pregnancy. हाँ जी. रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना बढ़ जाता है? ओके, इमराना कह रही है 40 to 50. बाकी सब लोग? मैम 60 to 80 ड्यू हेड्स में तो। इमराना, आप कहाँ से पढ़ा है आपने? पुराना याद आ रहा है आपको? ओवरऑल ब्लड फ्लो की बात नहीं हो रही, रीनल प्लाज्मा फ्लो की बात हो रही है. रबिया, आप 40 to 50 किस बेस पे बोल रही हैं? आपको क्यों ये फिगर याद है? कहाँ से पढ़ा आपने? सोबिया कह रही है 5 to 20. सोबिया, ये तो बिल्कुल ही गलत कर रही हो ना तुम. ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में था ना कि रीनल ब्लड फ्लो जो हम्म. होता है जी, वो 40 to 50% तक होता है। ये था. रीनल प्लाज्मा रिसेंटली फ्लो, पढ़ा हाँ। है आपने? रिसेंटली रिवाइज किया है आपने? नहीं, रिसेंटली तो नहीं पढ़ा। ओके. अगर मेमोरी। किसी के पास बुक है, बुशरा तुम्हारे पास बुक है, तो रेफरेंस शेयर कर दो. यस मैम, मैं शेयर करती हूँ। Hemodynamic adaptations that affect the urinary system consist of increased blood volume, decreased systemic vascular resistance, and increased cardiac output. These changes lead to 60 to 80% increases renal blood flow. ठीक है. सारी चीजें मिलकर जो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, डायलिटेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं जिसकी वजह से सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है, ये सब मिलजुला कर
रीनल ब्लड फ्लो को 60 to 80% इंक्रीज करते हैं एंड जीएफआर इंक्रीजेस बाय 50%. द कॉज दिस कॉज एन इंक्रीज इन creatinine clearance and urinary protein excretion. A systemic review of more than 4,000 creatinine values in pregnancy found that the mean value started in first trimester at 84% of the non-pregnant value, falling to 77% in the second trimester, rising again 80 in the third. ठीक है. थोड़ी सी बुशरा की बात से थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर कि थर्ड में फिर से बढ़ जाएगा ये. द 97.5th centile of serum creatinine equated to 77 micromole per liter, so this should be taken as upper normal limit. अच्छा, ये जो किडनी डिजीज पढ़ते हो ना जब तुम लोग, तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में सीरम क्रेटिनिन लेवल कहाँ तक तुम लोग नॉर्मल लोगे और उसके आगे से तुम रेज लोगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. 77. टॉक्स के लिए भी ये बात आपको याद होनी चाहिए. सो दिस शुड बी टेकन एज अ ओके, ये हो गया. अ नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिनरी प्रोटीन एज मेजर्ड बाय द पीसीआर इज लेस देन 30. ये भी तुम सबको पता है. ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन और मैकेनिकल कंप्रेशन फ्रॉम द ग्रोइंग यूट्रस, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर रिजल्ट. This should be considered when interpreting imaging of renal tract. These changes are usually more prominent on the right. ठीक हो गया? क्लियर है? तो अब किसी को नहीं भूलेगा. GFR इज 50%. रीनल ब्लड फ्लो जो है, प्लाज्मा ब्लड फ्लो, वो है 60 to 80%. ओके. क्वेश्चन नंबर 26. चेंज हो गई है ना? मास्टरिंग की शो हो रही है ना तुम लोगों को? जी मैम. जी हो रही. A 32-year-old woman. A 32-year-old woman in her first pregnancy was admitted to hospital at 29 weeks gestation because of colicky pain in the left loin, vomiting and fever of 37.8 degree centigrade. Investigations showed that she has a left ureteric colic. The patient was counseled and offered conservative treatment with painkiller, antibiotic and hydration. Unfortunately, 48 hours के बाद she was still spiking a temperature with deteriorating renal function. Almost पुराने वाला ही सिनेरियो है जो पहले पढ़ा है, आगे उसको डिटीरियोरेट कर दिया 48 आवर्स के बाद. ठीक है. Which of the following method is most frequently used to treat obstruction caused by calculi during pregnancy in this situation? Continue conservative treatment for further 48 hours, open through the renal incision and remove the calculi, percutaneous nephrostomy, ureteric stenting, ureteroscopy and stone removal. जी बताइए. Answers in chat for question number 26. तो हमारी पेशेंट को 24 to 48 hours हो गए हैं. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर हर, सो वी कैन नॉट कंटिन्यू द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इन हर केस. शी इज गेटिंग वर्स, शी इज डिटीरियोरेटिंग. ठीक है. रीनल इंसिशन और रिमूव द कैलकुलाई. इससे बेहतर है कि हम परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी, मिनिमली इन्वेजिव. ठीक है. स्टेंटिंग की जरूरत नहीं है. यूरेट्रोस्कोपी एंड स्टोन रिमूवल की जरूरत नहीं है. You can easily perform percutaneous nephrostomy. छोटा सा इंसिशन आता है. ठीक है. सो एवरीबडी नो द आंसर आई गेस. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े. Question number 27. A 51-year-old woman has had urodynamic studies done because of multiple lower urinary tract symptoms. The result shows the following. Filling during the filling phase, maximum bladder capacity of 460 ml. Vesical and abdominal increase synchronously when the patient was asked to cough. ठीक है. Detrusor fluctuations between +5 and -5 centimeter of water. During the voiding phase, patient leaked on coughing and detrusor was +5. Which of the following option is most likely the diagnosis? Detrusor overactivity, incontinence, mixed urinary
यूरोडायनेमिक स्ट्रेस एंड डिट्रूजर इनकॉन्टिनेंस, नॉर्मल यूरोडायनेमिक स्टडी रिजल्ट्स या फिर यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस? जी। Pinky is saying it's C. Imrana is saying it's stress urodynamic. Okay. Dr. Pinky, can you tell me how this is C? How this is mixed? Detrusor B or stress B? और इसके लिए आपको डिट्रूजर का नॉर्मल प्रेशर भी पता होना चाहिए। बुशरा, आई एम नॉट हेयरिंग फ्रॉम यू। आंसर करो इस मैम क्वेश्चन को। यूरोडायनेमिक मैडम ई होगा, यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, अभी समझ रही थी एक्सप्लेन भी कर दो। क्योंकि मैम देखिए नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि ये पेशेंट जब कफ करिए तो उसका देखें, जब कफ करेगी ना तो एब्डोमेन प्रेशर को ना कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है ना, मैंने बहुत पहले पढ़ा था मैम ये। हम्म। तो एब्डोमेन प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। कफ के टाइम पे एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज, एब्डोमेन प्रेशर और वेजाइकल प्रेशर दोनों चेंज हो रहे हैं ना, तो ये सिग्निफिकेंस होती है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। बट और डिट्रूजर प्रेशर के ऊपर ना इतना कोई मिनिमल, इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, मिनिमल चेंज आ रहा है। तो इसलिए ये सी नहीं होगा, ये ई होगा, क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में ही कफ पे होता है। और डिट्रूजर ओवर इनकॉन्टिनेंस भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसी पिक्चर नहीं होती, उसमें ओवरफ्लो, मतलब डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी में ऐसे नहीं होता, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और उसके अलावा ना पीडीई जो होता है ना वो ज्यादा चेंज होता है, और एब्डोमेन जो होता है ना वो चेंज नहीं होता। ये बहुत पहले पढ़ा था मैम, इसलिए एग्जैक्ट बता नहीं पा रही, लेकिन ये होगा ई ऑप्शन। अच्छा, कोई और इसको एक्सप्लेन कर सकता है? एनीबॉडी? ओके, पिंकी नाउ इज कन्विंस्ड विद ई। ओके। अच्छा देखो बुशरा, तुम्हारी वेग मेमोरी बिल्कुल सही कह रही है। देखो इस पेशेंट को जब फिलिंग फेज है, ब्लड कैपेसिटी इज फाइन। आपको पता है जब फिलिंग हो रही होती है तो वेजाइकल रेजेस, ठीक है, और एब्डोमिनल भी थोड़ा सा रेज जरूर होता है, बट डिट्रूजर नहीं होता। ऑब्वियसली व्हेन पेशेंट वाज आस्क्ड टू कफ तो एब्डोमिनल तो रेज होगा, ठीक है, वेजाइकल भी रेज होगा, बट डिट्रूजर रेज नहीं होगा। ठीक है, हमें ये पता है कि डिट्रूजर रेज नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि डिट्रूजर रेज नहीं हुआ, हमें इन्होंने डिट्रूजर का प्रेशर बता दिया। सो टू इंटरप्रेट दिस थिंग वी शुड नो डिट्रूजर का नॉर्मल प्रेशर। डिट्रूजर का नॉर्मल प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है, या +5 या -5, इसके बीच में होता है। दिस फ्लक्चुएशन इज नॉर्मल। इसका मतलब है डिट्रूजर का प्रेशर बढ़ नहीं रहा। ठीक है, डिट्रूजर का प्रेशर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब वॉइडिंग फेज में क्या हुआ, पेशेंट को जब कफ करने को बोला तो डिट्रूजर वॉज अगेन +5, विच वी नो नाउ के इट इज नॉर्मल, बट शी लीक्ड ऑन कफिंग। So, to label it the stress urinary incontinence, urodynamic stress incontinence, she should leak on cuffing, which she is. But to label it detrusor overactivity, she should have raised detrusor pressure। ठीक है, विदाउट लीकिंग वाली सिंपल डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी होती है। एंड डिट्रूजर अगर
detrusor pressure is increasing and she is leaking at the same time, then it is detrusor overactivity incontinence, ठीक है, जिसको ड्राई और वेट टर्म जिसके लिए यूज होती हैं। ठीक, तो जब ये डिसाइड हो गया कि दिस इज नॉट डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी एट ऑल, शी इज ओनली लीकिंग ऑन कफिंग, ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफिकली यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। मिक्स्ड ये है ही नहीं, जब हमने पहले दो रूल आउट कर लिए तो ये मिक्स काय की हो गई। दिस इज नॉट मिक्स्ड एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट नॉर्मल यूरोडायनेमिक स्टडी रिजल्ट्स, ठीक है। Patient should not leak at all during neither the voiding phase as well, nor in the filling, ठीक है। Got it? समझ आ गई? यस मैम आ गई। Okay. Last question. Your consultant examines a 65-year-old patient who presented with symptoms of pelvic organ prolapse. She had a hysterectomy 10 years previously. The prolapse is noticed. The most distal portion of prolapse protrudes more than 1 centimeter below the hymen, but no farther than 2 centimeter less than the total vaginal length. Means TVL से आप माइनस कर दो 2 को, तो वो कहता है कि उससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा वो। मैम ये तो स्टेज 3 है, बहुत सिंपल है। Rest of people, I need your answers. स्टेज 3। इमराना तुम आराम से नमाज पढ़ लो। सुम्बुल ओके, स्टेज 3, 1 centimeter below, बट विद इन द TVL -2 के अंदर, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आगे चली जाएगी तो वो स्टेज 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको पॉप क्यू समझना पड़ेगा, जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, ठीक है। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पॉप क्यू आ जाएगा। अच्छा, अब हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। लेट मी चेक के इसमें से कुछ हमारा टॉपिक रिवाइज होता है तो एक्सप्लेनेशंस पढ़ लेते हैं। ये इंडवेलिंग कैथेटर्स हमने पिछली क्लास में कर लिया था, और टोल्टेरोडीन वाला भी हमको पता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं ड्रग्स को। अच्छा, ये जो है ना यूरोडायनेमिक की जितनी भी ड्रग्स हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी आते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, कॉशंस, वो सारी चीजें आती हैं। तो यूरोडायनेमिक का पूरा चैप्टर आपने अच्छे से बेसिक समझनी है, रिवाइज करनी है, तो टेन टीचर से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर वैसे तो टेन टीचर पे भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर आप EBM से करो। नई वाली EBM में यूरोडायनेमिक चैप्टर कैसा है मेरे को नहीं पता, पुरानी वाली में बहुत अच्छा था, सारी ड्रग्स बहुत अच्छी बताई गई थी। डू नॉट यूज फ्लेवोक्सेट, प्रोपेंथिलीन, इमिप्रामीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ UTI, सॉरी, यूरिन इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर इन वुमेन। ये वाली चीज़ें तो हम वैसे भी यूज़ नहीं करते। डू नॉट ऑफर ऑक्सीबिटाइनिन टू फ्राइल ओल्डर वुमेन। हमारी पेशेंट 80+ थी, तो इस वजह से हमने यूज ही नहीं की थी, हमने चूज किया था टोल्टेरोडीन। तो हमें OTD के नाम से पता है 3 ड्रग्स हैं एंटीमस्करिनिक्स। तो ऑफर वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस फर्स्ट टू वुमेन विद ओवर एक्टिव ब्लैडर और मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस: ऑक्सीबिटाइनिन इमीडिएट रिलीज, टोल्टेरोडीन इमीडिएट रिलीज एंड डेरिफेनासिन वंस डेली प्रिपरेशन। ये इमीडिएट रिलीज जो है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी किसी बुक में तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे इमीडिएट रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज इस तरह से भी ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन में बी कंसीडर स्पेसिफिकली टू रिड्यूस नॉक्यूरिया। इस पे भी सवाल आता है। यूज विद पर्टिकुलर कॉशन इन अ वुमन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अवॉइड इन दोज over 65 years with cardiovascular disease or hypertension. This is very very much important point, इसमें से सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, जो हम यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं आज के क्वेश्चंस, दिस नॉर्मल फ्लो जो था, नॉर्मल फीमेल मैक्सिमम फ्लो रेट शुड बी मोर देन 15 ml/s with a bell shaped curve and no residual urine measured by ultrasound scanning after voiding. Ideally, more than one flow should be performed to diagnose voiding dysfunction, as the initial flow can be affected by anxiety, but
about voiding into the flow meter. In addition, the voided urine should be reasonable volume, about 150 ml, similar to the voided volume recorded in their bladder diaries. सही? That's why हम हमेशा स्टार्ट करते हैं ब्लैडर डायरी से, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट के जब हमने यूरोडायनेमिक करना है तो कितना फ्लो उसको देना है, कितना फ्लूइड हमने इन्फ्यूज करना है उसके ब्लैडर में। ठीक है, अच्छा जी। यूरोडायनेमिक्स थोड़ी थोड़ी सी जितनी यहाँ से रिवाइज हो सकती है हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ये अच्छी एक्सप्लेनेशन है। Urodynamic is number of different physiological tests of bladder and urethral function to diagnose pathology causing the woman symptoms on which a management plan can be based and to predict problems that may follow treatment intervention, जैसे कि a decreased flow rate may predict a high incidence of retention after mid-urethral tape insertion. ठीक है, सो यू शुड नो कि अगर किसी को हमने टीवीटी रखी है तो फिर हो सकता है कि बाद में वो प्रॉब्लम्स के साथ आए तो उसमें डिक्रीज फ्लो रेट हमें मिल सकता है। ठीक है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन द प्रेजेंस ऑफ डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी इन एडिशन टू यूरोडायनेमिक स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस विल प्रिडिक्ट अ हाई रिस्क ऑफ वर्सनिंग ओएबी सिम्टम्स आफ्टर मिड यूरेथ्रल टेप इंसर्शन। अगर किसी को दोनों चीजें हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो फेल हो सकता है, टीवीटी का प्रोसीजर फेल हो सकता है या वर्स हो सकता है। यूरोडायनेमिक इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसिंग नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर स्टोरेज सिम्टम्स, ये तुम सबको पता है। यूरोडायनेमिक की पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, पहले पहले हम चूज नहीं करते उसको। यूरोडायनेमिक में क्या क्या होता है? सिस्टोमेट्री होती है, यूरोफ्लोमेट्री होती है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स यूरोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि वीडियो यूरोडायनेमिक्स, यूरिथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री, एम्बुलेटरी यूरोडायनेमिक्स। हमारा इससे काम नहीं है, हम हमारे जो सवाल आते हैं जितना हमें पता होना चाहिए ना हमारे लेवल पे वो यही है, सिस्टोमेट्री और यूरोफ्लोमेट्री। सिस्टोमेट्री क्या है? सिस्टोमेट्री स्टडीज बोथ फिलिंग एंड voiding phase of micturition. During the test, patient has two catheters in the bladder. सही है, वन फॉर फिलिंग द ब्लैडर एंड अदर फॉर मेजरिंग द प्रेशर। सही है, इसकी बड़ी अच्छी पिक्चर आपकी 10 टीचर पे बनी हुई है। एडिशनली द पेशेंट हैज अ प्रेशर कैथेटर इन द रेक्टम, ये जो रेक्टम वाला है ना ये एब्डोमिनल प्रेशर को मेजर करता है। सिस्टोमेट्री इज एन इन्वेजिव टेस्ट विद स्मॉल रिस्क ऑफ यूटीआई एंड हेमेचूरिया ड्यू टू माइनर ट्रॉमा फ्रॉम कैथेटर्स। अच्छा जी, फिलिंग सिस्टोमेट्री फेज। फिलिंग सिस्टोमेट्री फेज, this part of test diagnosed detrusor overactivity and urinary stress incontinence and record bladder sensations at different bladder volumes कि कब उसको sensations feel हो रही है पेशेंट को। ठीक है, bladder is filled slowly with normal saline। ठीक है, यूजुअली क्या रेट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, एट अ रेट ऑफ 50 ml per minute। As it fills, bladder pressure catheter measures the intravesical pressure while rectal pressure catheter measure the intra-abdominal pressure। मैंने बता दिया ये पहले। The detrusor pressure is calculated by subtracting abdominal from vesicle। इस पे हमने सवाल सॉल्व कर लिया। Abdominal detrusor are necessary in order to diagnose urinary stress incontinence and detrusor overactivity। ठीक है, अच्छा जी। यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? वुमेन इज आस्क्ड टू कफ vigorously। The sharp rise, oh my God, the the sharp rises in vesicle are due to solely rise in the abdominal pressure। ठीक है ना, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। there is no rise in detrusor pressure, ये मैं पहले आपको बता चुकी। any leakage has to be the result of urinary stress incontinence। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में था। in this trace leakage is recorded as woman is sitting over the flow meter। ठीक है, लीकेज इज कंफर्म विजुअली बाय सीइंग यूरिन एस्केप फ्रॉम द यूरेथ्रा। जो बंदा ऑपरेटर जो कर रहा होता है ना वो देखता भी है विजुअली, इफ शी इज नॉट सिटिंग ओवर अ फ्लो मीटर व्हेन शी कफ्स। ठीक हो गया। डिट्यूजर ओवर एक्टिविटी में क्या होता है? डिट्यूजर ओवर एक्टिविटी इज डायग्नोज इफ अ प्रेशर चेंज इज सीन ऑन द वेसिकल प्रेशर एंड डिट्यूजर प्रेशर बट नॉट ऑन एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, वेसिकल के साथ जब डिट्यूजर भी बढ़ेगा तो देन दिस इज डिट्यूजर ओवर एक्टिविटी। यूरोफ्लोमेट्री इज सिंपल नॉन इन्वेजिव टेस्ट टू रिकॉर्ड फ्लो पैरामीटर्स, पेशेंट के फ्लो कैसे हैं। अब जो हमने कंप्लायंस की बातें पढ़ी थी अपने क्वेश्चन में, ब्लैडर कंप्लायंस क्या है? बेसिकली इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट राइज ऑफ प्रेशर मेजर ड्यूरिंग फिलिंग। कितना आप फ्लूइड जो है कितना और किस रेट से आप ब्लैडर में फ्लूइड इन्फ्यूज करोगे तो उसका ब्लैडर का कितना प्रेशर बढ़ेगा, बेसिकली कंप्लायंस ये है। ठीक है, कैपेसिटी इन अदर वर्ड्स आसान
लफ्ज़ों में अगर इसको समझना है तो ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है कि वो अपने अंदर एक लिमिट ऑफ फ्लूइड जो है वो अकोमोडेट कर ले विदाउट राइजिंग द प्रेशर, और विद राइजिंग द प्रेशर फिर वो कितना प्रेशर है और कितना फ्लूइड है जिस पर उसका प्रेशर राइज हो रहा है। ठीक है। इट इंडिकेट्स हाउ ब्लैडर वॉल रिएक्ट्स ऑन स्ट्रेचिंग। ठीक हो गया। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग एब्डोमिनल फ्रॉम वेसिकल। ठीक। A large rise in bladder pressure more than 1 centimeter per 40 ml in relation to bladder capacity is termed low compliance। ठीक है। कि कहने का मकसद है कि 40 या 30 ml पर ब्लैडर का प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर बढ़ेगा तो ब्लैडर की कंप्लायंस लो है। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। It would, however, be unusual to see low compliance in a woman without underlying neurologic or intrinsic bladder disease। ठीक है। ऐसा कोई मसला होएगा मरीज को तो ही आपको लो कंप्लायंस की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। सही है जी। It is usually seen in spinal cord injury, multiple sclerosis, following pelvic radiotherapy, and recurrent urinary tract infection. This point, if the whole explanation is very much important for you guys. This thing. ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपको पेशेंट दी जाए, उसको कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की हिस्ट्री है, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और उसको फिर प्रॉब्लम्स है ओवरफ्लो की। ठीक है। फिर उसकी यूरोडायनेमिक होती है तो फिर आपको इस तरह की लो ब्लैडर कंप्लायंस वाली पिक्चर दे दी जाएगी। ठीक है। या फिर आपको बस ये सिचुएशंस दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनकी कंप्लायंस जो है ना वो पुअर होती है इन पेशेंट्स की। ठीक है। लो कंप्लायंस कैन बी फंक्शनल। क्यों कब फंक्शनल हो सकती है? ट्रीटेड विद एंटी मस्करेनिक्स एंड बोटुलिनम टॉक्सिन ए, और स्ट्रक्चरल विच रिक्वायर सर्जिकल मैनेजमेंट। सही है। समझ आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेरी? जल्दी बता दो, आखिरी 1 मिनट है, इसको वाइंड अप करें चैप्टर को। नो मैम। ओके। चलें अब हम ये सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जो यूरेट्रिक कॉलिक के थे इन द प्रेगनेंसी। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी इज एंटरिंग द किडनी थ्रू अ स्मॉल इंसिशन इन द बैक। For insertion of nephroscope, a kidney stone are then removed under vision. It can be inserted under local anesthetic and is a temporizing measure to prevent further deterioration in the renal function until definitive treatment can be performed following the delivery. Temporary measure है। ठीक है। यूरिनरी स्टेंट्स जो हैं these are also effective at relieving obstruction. However, they can become infected, encrusted and may need changing several times throughout the pregnancy. So बहुत problematic हो जाएगा पेशेंट के लिए। Stone removal during urethroस्कोपी। अब इट हैज़ बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। इट इज़ देयर फॉर अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। द डिसीजन फॉर विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डिपेंडेंट ऑन द केस एंड विल रिक्वायर एमडीटी इनपुट फ्रॉम यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन हमने पूरा अच्छे तरीके से ऊपर यूरोडायनेमिक पढ़ के समझ लिया है। प्रोलैप्स के लिए आप लोग इसके स्टेजेस रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वो स्टेज 3 था। ठीक है जी। लेट्स वेट फॉर अदर लिंक नाउ। ये तो एक्सपायर होने वाला है, फिर स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। ओके, so chapter number 19. Question number 1. A 31-year-old woman presents to Accident and Emergency Department 3 days following an oocyte retrieval procedure. The patient is complaining of abdominal pain, vomiting, dizziness, and shortness of breath. You are on your way to assess the patient. What would you want the emergency attendant to do while waiting for you to arrive? Attach a pulse oximeter and ECG, administration of analgesics and antiemetics, administer IV albumin, admit to hospital and IV, administration of 2 to 3 liter fluid, arrange urgent abdominal and chest ultrasound evaluation, arrange a chest x-ray and ECG. हाँ जी। Option A, attach a pulse oximeter, electrocardiogram, and administration of analgesia and antiemetic.
ओके, बाकी सब। तो आपकी पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आई है, वोमिटिंग, डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इमीडिएटली जो है आप उसकी सैचुरेशन चेक करेंगे। एसओबी के बेसिस पे आप ईसीजी, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए एंड एंटीएमेटिक्स, दीज थिंग्स शुड नॉट बी डिलेड फॉर द सेक ऑफ असेसमेंट। ठीक है। बाकी फिर ऑब्वियसली फिर उसकी जब डिग्रीज असेस हम करेंगे कि कौन कितनी सिवियर है, इसको ओएचएसएस हुआ है, उस हिसाब से फिर इसकी ट्रीटमेंट। ठीक। सो ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, sorry 2. Severe ovarian hyperstimulation syndrome is a recognized serious complication of fertility treatments. What is the triggering factor for this condition? Administration of HCG for follicle maturation, embryo replacement, failure to monitor serum estradiol and perform proper ultrasound folliculometry, inappropriate evaluation of patient prior to treatment, the use of large doses of gonadotropins for ovarian stimulation. Basically, they have not asked for the risk factors, they have asked the triggering factor for this condition. Yes. क्वेश्चन ट्रिगरिंग फैक्टर तो यही है कि जैसे ही हम एचएसजी का इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को सिम्पटोमेटिक होती है। पोस्ट एचसीजी के बाद जो है पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं। अब फिर वो अर्ली ओएचएसएस है, अगर विद इन 7 डेज है या बाद में है, तो वो फिर अर्ली और लेट की भी डेफिनेशन तुम लोग को आनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, इजी सवाल है ये। ओके जी। A 28-year-old female diagnosed with polycystic ovarian disease is undergoing an IVF cycle. The patient is counseled and informed that all possible measures will be taken to avoid complication of OHSS. Which protocol of ovarian stimulation would be advisable in a patient of PCOS? Clomiphene citrate in conjunction with the small dose of gonadotropins, GnRH antagonist protocol with GnRH agonist used for ovulation induction. Recombinant FSH should be used in combination with recombinant HCG. Soft stimulation of GnRH agonist and a step-up protocol and a minimal dose of HCG. Soft stimulation with GnRH agonist and a step-down protocol followed by HCG. हाँ जी, आंसर प्लीज। बुशरा कह रही हैं 3 का है बी। डॉक्टर सायरा इज विद बी। रेस्ट ऑफ पीपल। क्वेश्चन बी ठीक है। पीसीओएस की पेशेंट में आप, क्योंकि पीसीओ इज द रिस्क फैक्टर फॉर OHSS, for developing OHSS, सो आप इन पेशेंट्स में प्रेफर्ड है कि आप एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल दें एंड देन यू कैन use the GnRH agonist for the trigger for ovulation induction. ठीक है, this thing has not been changed in the current guidelines. PCO में यही रिकमेंडेशन है स्टिल। सही है। और इसके अलावा मुझे बताओ कि आईवीएफ को छोड़ो, वैसे ही अगर आपके पास पीसीओएस की पेशेंट होती है एंड शी हैज द फर्टिलिटी कंसर्न एंड शी नीड्स द ओवुलेशन इंडक्शन, आप ओरल दे रहे हो, तो ओरल में से अब कौन सी प्रेफर्ड है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइंस, रीसेंट? लेट्रोजोल। लेट्रोजोल देते हैं, ये जो लेजरा नाम से आती है ना डॉक्टर कुलवशा, पहले तो क्लोमिड देते थे। सो आई जस्ट होप कि अब आप सबको पता है कि नाउ फर्स्ट लाइन इज लेट्राजोल इन पेशेंट्स विद पीसीओस। इसको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्लीज क्लोमिफिन मत करके आना। दिस थिंग हैज चेंज्ड नाउ, फर्स्ट लाइन इज लेजरा फॉर पीसीओस पीपल। ठीक है, okay. A 29-year-old woman with primary infertility due to tubal obstruction has undergone 2 trials of IVF with no success. Ovarian response and embryo cleavage had always been good. Previous ultrasound and hysteroscopy were normal. Her partner semen analysis is satisfactory. Karyotype for couple is normal. What is the most probable cause of failure of implantation in this patient? Aneuploidy of embryos,
apply antibodies, toxic fluid in a hydrosalpinx draining to the uterus, progesterone deficiency, thick or hard zona pellucida. This is a patient of tubal obstruction. दो IVF साइकिल उसके फेल हो गए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Sumbul is saying C. Question number 4. फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन जो होती है वो मोस्टली तो कोई ना कोई अनोमली होती है, कोई इनप्लाइडी की वजह से हो सकता है, जिसमें अगर फ्रीक्वेंट से हेयर इम्प्लांटेशन होते हैं तो फिर हम लोग पीजीडी कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक ए ऑप्शन भी बेटर। इसमें देखें एम्ब्रियो क्लीवेज भी हो जाता है, तो इस वजह से थिक और हार्ड दोनों पेल्विसिड वाला तो मसला हट ही गया। ठीक है, अब इसमें ये जो है ना कि आईवीएफ के पेशेंट का जब ट्यूबल ब्लॉक होती है तभी जो है ना वो बायलेटरल सेल्फ इंजेक्टेमी कर देते हैं और फिर आईवीएफ प्रोसीड करते हैं, इसी वजह से ना, ताकि जो टॉक्सिक फ्लूइड जो होता है हाइड्रोसल्फिन्स का वो मिसकैरेज करवा देता है, अनएबल टू कंसीव होता है। इसलिए इसका आंसर सी है। okay. How many people of you are with C and how many of you with A? अगर वो सीवियर हाइड्रोसेल्मिक्स हो तो फिर वो उसमें आईवीएफ से पहले हम बायलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी कर देते होते हैं। तो एक साइकिल उसने लिया, फिर दोबारा भी इतनी उसकी गंदी ट्यूब से तो दोबारा भी उसने ले लिया। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर तो वो फिर पीजीडी वाली साइड पे आता है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, उसमें फिर हम लोग कहेंगे कि कोई ना कोई एम्ब्रियो के अंदर कोई एनोमली आ रही है, जो मुझे याद है। इस चीज से आपको मैम वजह क्या से इसमें लग रहा है? इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या लग रहा है? इट्स सी और मैम इससे ए। दिस इज द क्लू. दिस इज द क्लू. They have just said the यस tubal obstruction. स्टेरोनॉर्मल। ठीक है? 2 trials with no success. बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसकी आपको उन्होंने रिपोर्ट्स भी दे दी ना, ये हाइड्रोसेल्पिंग्स और ये सारी चीजें होनी होती तो ये आ जाती ना यहाँ पर, वर नॉर्मल. यस यस डॉक्टर ठीक, बलवर्षा तो IVF जी। फेल उसका 2 बार ही हुआ है, क्लीवेज भी ठीक हो रही है, सारी चीजें सही हो रही हैं. सो द मोस्ट कॉमन कॉज इज नाउ एन्यूप्लाइडी ऑफ द एम्ब्रियोस. सही है? जी समझ आई? आपको इमेजिंग सब नॉर्मल दे दी है, देयर इज नो हाइड्रोसेल्पिंग्स. ठीक है, फिर भी हम लोग की तसल्ली के लिए नीचे वाले आंसर्स नहीं देगा. Even in normal euploid couples, chromosomal aberrations of human embryos are common. Aneuploidy is recognized the most common cause behind repeated implantation failure and early pregnancy loss. Her tubal factor fertility is not likely to be the cause of implantation failure. Hydrosalpinx was excluded by previous hysteroscopy and ultrasonography. ठीक है, अग्री नाउ? चलें आगे? रबिया बताएगी, चले रबिया आगे? जी जी। ओके, ठीक है. A couple have been trying to achieve a spontaneous pregnancy for 3 years. The female partner is 37 years old and was diagnosed with endometriosis stage 3. Which of the following would be the best appropriate recommendation? Laparoscopic surgery with ablation of endometriotic tissue, laparoscopic surgery followed by 6 months period of ovulation induction, laparoscopic surgery, laser surgery followed by 3 trials of artificial insemination, treatment with GnRH analog for period from 3 to 6 months. The couple should proceed to IVF ASAP. Easy. यस डॉक्टर बलवर्षा, वेरी इजी। इसमें ऑप्शन ई होगी, कपल शुड प्रोसीड टू आईवीएफ, क्योंकि मोर देन 3 ईयर है, 37 है और स्टेज 3 एंडोमेट्रियोसिस है।
ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है खैर आईवीएफ का भी। पहली चीज़ तो ये कि एडवांस्ड स्टेज उसकी एंडोमेट्रियोसिस है। दूसरी चीज़ ये कि इट्स बीन लॉन्ग सिंस शी इज़ ट्राइंग, 3 साल, और पेशेंट की अपनी एज भी एडवांस है, तो बजाय इसके कि हम इसका टाइम ज़ाया करें, ठीक है, हम इसको स्ट्रेट वे आईवीएफ के लिए भेज देंगे। ठीक है। अब मज़ीद टॉक्स आर्टिकल्स हैं इस पर, बहुत सारी चीज़ें अब तो एडवांस हो गई हैं रिगार्डिंग द एंडोमेट्रोसिस, कि एंडोमेट्रोसिस में सर्जरी जो है ना, आप डिसाइड करते हो कि आपकी पेशेंट सिम्टोमेटिक है। इफ़ शी इज़ सिम्टोमेटिक फॉर एंडोमेट्रोसिस देन ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद हर पेन। तो उसमें फिर आप स्टेप स्टेप वाइज जाते हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट, पहले आप नॉन हार्मोनल ट्राई करते हैं, फिर आप हार्मोनल ट्राई करते हैं। ठीक है। पेशेंट के पेन को रिजॉल्व करने के लिए, अगर वो भी नहीं होता, फिर जो है आप सर्जरी करते हैं उस पेशेंट की, ठीक है, टू रिमूव द एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स। बट दिस पेशेंट इज विद एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में फिर हम सर्जरी, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो ओके वी कैन कंसीडर, क्योंकि हर एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी जब आप करोगे तो वो एक तो ये कि वो इन्वेजिव है, पूरे लीजन्स आप नहीं निकाल सकते। दूसरा, पेशेंट के ओवेरियन रिजर्व को खतरा है। ऐसी पेशेंट जिसको फर्टिलिटी कंसर्न है, हम बहुत सोच समझ के अब उसकी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करते हैं, भले से सिंपल एंडोमेट्रियोमा ही हो उसको, और जो है वो एडवांस ना हुई हो। ठीक है। वी बेटर टू गो फॉर आईवीएफ नाउ। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि पेशेंट की एज कितनी है, उसका वेरिएंट रिजर्व कितना है, कब से ट्राई कर रही है, सिम्टोमेटिक तो नहीं है, प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई उसकी एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड, वो फेल हो गई है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सही है जी। इंशाल्लाह जब ये क्लियर कर लोगे ना तुम लोग थ्योरी, तो टॉक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिर आप। हाँ जी। Okay, question number 6. A 35-year-old infertile patient is classified to having stage 1 endometriosis and was prepared for IVF treatment. After counseling regarding the treatment, she asks you some questions. Which of the following statements regarding IVF is correct? Clinical pregnancy rate for IVF is reduced in endometriosis. Miscarriage rate is higher than the average in patient with stage 1 endometriosis. Ovarian stimulation could make endometriosis condition worse. Stage of endometriosis has no impact on the number of oocytes produced. Studies have shown lower fertility rates in stage 1 endometriosis. However, implantation and clinical pregnancy rates are not affected. हाँ जी, बताइए। डॉक्टर प्रदर्शन, यहाँ पे ये जो स्टडीज में जो लोअर फर्टिलाइजेशन रेट्स इन स्टेज 1 एंडोमेट्रियोसिस, ये स्पॉन्टेनियस पूछ रहे हैं या आईवीएफ के साथ कर रहे हैं? आईवीएफ रिलेटेड क्वेश्चन में आईवीएफ लिखा हुआ है ना, वो ट्रीटमेंट आईवीएफ की तरफ जा रही है वो। जी। हाँ जी जी। सोबिया कह रही हैं ई, रबिया कह रही हैं ई, बुशरा कह रही हैं ई। ओके, ऑलराइट। सो देखो, इम्प्लांटेशन और क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट्स ये इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। ठीक है, लेकिन हाँ जब वो कंसीव कर लेती है, फिर मिसकैरेज के और एफजीआर के वो रिस्क अलग हैं। ठीक है, वो रिस्क इन पेशेंट्स में अलग है। लेकिन फर्टिलाइजेशन का रेट ऑब्वियसली, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस ओवेरियन रिजर्व को काफ़ी हद तक, oocyte क्वालिटी को, ओवेरियन रिजर्व को अफेक्ट करती है, ठीक है, ड्यू टू इट्स पैथोलॉजी, तो फर्टिलाइजेशन रेट्स कम होते हैं। ठीक है। अब मिसकैरेज का रिस्क है लेकिन इतना नहीं है जो इन्होंने हायर बोला हुआ है, ऐसी बात नहीं है कोई। और ओवेरियन स्टिमुलेशन का कोई इसके साथ वो कंडीशन इसको वर्स नहीं करती। Stage of endometriosis has no impact on the number of oocyte produced. No, it does. ठीक है। Clinical pregnancy rate of IVF is reduced in endometriosis. No.
असल चीज फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना, क्योंकि ये एग एग को अफेक्ट करता है। सही है, क्लियर है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, आगे चले, क्योंकि अब 15 मिनट है, असर होएगी फिर यहाँ पे। Question number 7. An HIV discordant couple desiring children are counseled regarding the risk of viral transmission. Which of the following information is correct? Only IVF should be performed if the infected male partner's sperm is to be used. Semen washing and artificial insemination is a safe option for both female. For both female? क्या मतलब for both female? अच्छा, for couple बोला होगा. The couple should defer pregnancy in order to avoid the risk of viral transmission. The only safe approach is to use the sperm of a healthy matched donor. The virus suppression therapy is instituted prior to the use of male partner sperm. मैं अभी पढ़ती भी नहीं हूँ और आंसर्स आ जाते हैं चैट में। ऑप्शंस भी मैंने पूरे नहीं किए हुए होते। ओके, सही है, तुम लोगों सबको ये पता है कि हम सेमेन वॉशिंग जो है या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम ऑफर कर देते हैं टू द कपल जिसके पार्टनर HIV पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी एक रिकमेंडेशन है कि अगर वो जो पेशेंट है HIV का, उसका पार्टनर, मेल पार्टनर, अगर वो उसका जो वायरल लोड है 50 से कम है ना, और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो फिर उसका रिस्क कम हो जाता है, हम इतने वरिड नहीं होते। A 27-year-old woman failed to conceive for 4 years. She is a heavy smoker with oligomenorrhea. Her BMI is 37. What would be the first line of management? Attempt IVF without any further delay. Assessment laparoscopy, diet control for weight reduction, advice to stop smoking. Induction of ovulation with the combination of insulin sensitizer and CC. Pelvic ultrasound and measurement of serum testosterone and prolactin hormones. 4 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रही है, हैवी स्मोकर है, BMI 37 है, ओलिगोमेनोरिया भी है उसको। क्या करना चाहिए? पहली फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, डॉक्टर फर्स्ट सायरा। लाइन तो फिर इश्यू डाइटरी मॉडिफिकेशन है हम्म, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। सोच लो, सोच लो अच्छे से फिर से। हाउ आर यू डायग्नोजिंग इट? PCO, मुझे PCO का क्राइटेरिया बताना डायग्नोस्टिक। प्रेशर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है, और इसके साथ हम उसकी लैब्स करवाते हैं जिसमें हम वो देखते हैं हम्म FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल। हम्म और थर्ड जो है ना, साइन एंड सिम्टम ऑफ द एंड्रोजनिज्म। ये 3 क्राइटेरिया पे हम पीसीओएस को डायग्नोज करते रोटरडैम क्राइटेरिया मुझे बताओ, रोटरडैम क्राइटेरिया, यही नाम है ना उसका, रोटरडैम। हाँ, वो बताओ मुझे। हैं। नंबर 1 होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, है ना, एमेनोरिया या जी ओलिगोमेनोरिया, यस। ठीक है। दूसरा, पेशेंट को साइंस ऑफ कोई, साइंस ऑफ यस थैंक यू डॉक्टर हाइपरएंथ्रोपिनेशन। सायरा जी, उसमें पेशेंट को हिर्सुटिज्म, एक्नी, ठीक है, उसमें ओबेसिटी, खैर ओबेसिटी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है। तीसरा क्या है? पेल्विक अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। जिसमें आपको पॉलिसिस्टिक पिक्चर्स मिलती हैं, है ना। जी जी। तो अब इधर क्या आपके क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया पूरा हो रहा है PCO जिसकी बेसिस पे आप डाइट कंट्रोल करवा रही हैं उसकी? नहीं हो रहा पूरा, मतलब नहीं हो अभी रहा ना? डायग्नोसिस नहीं बना। जी यस, जी नहीं बना। सिर्फ एक क्राइटेरिया है हमारे पास, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी वाला, ठीक है। और BMI हम्म जो है वो 37 है। अच्छा। अब इनमें BMI हाई भी होता है, लो भी होता है PCOS वाले में। सो वी कैन नॉट डायग्नोज ऑन द बेसिस ऑफ BMI, हमें और चीज़ें चाहिए। हमें या तो हाइपरएंडोजिनिज्म की पिक्चर चाहिए, या हमें पेल्विक अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवरीज चाहिए, है ना। तो मैनेजमेंट का मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट का मतलब डायग्नोसिस बनाना भी होता है। सो फर्स्ट बस ऑफ मैं ऑल, कंफ्यूज हो गई। we will establish the diagnosis. We will go for pelvic ultrasound and measurement of serum testosterone and prolactin hormones. खैर ये प्रोलैक्टिन की तो बात मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो ठीक है इन सब में, ऑप्शन ही E ठीक है, अप्रोप्रिएट।
प्रोलैक्टिन हार्मोन तो खैर नहीं, ऐसे अगर तुम्हें चूज करने को है तो अगर ये तीनों ऑप्शंस अलग अलग आते हैं तो प्लीज डू नॉट चूज प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है। अभी हमें क्राइटेरिया फिल करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, एक तो हमें चाहिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ठीक है। या फिर अगर पेशेंट अगर ये पेशेंट, ऐसा ये सवाल है, इसी किताब में है शायद, अगर इस पेशेंट को हिर्सुटिज्म एक्नी होता ना इस स्टेम में, देन यू कुड हैव चूज द ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे दो क्राइटेरिया, तीन में से दो फुल हो जाते हैं हमारे, फिल हो जाते हैं। सही है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझना तुम लोग। और सो मैम यहाँ पर ये हमें ई चूज करना पड़ेगा, ऑल्दो आई एम नॉट हैप्पी विद द स्मोकर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। है, ये जो ई ऑप्शन है ये हैवी स्मोकर को तो जस्टिफाई कर नहीं रहा। वो हैवी स्मोकर है, हमें स्टॉप तो करानी पड़ेगी इसकी स्मोकिंग। हाँ तो अगर आप स्मोकिंग वेट ठीक रिडक्शन है। की बात कह रहे हो, अगर सिर्फ अवॉइड अवॉइड या एडवाइस टू स्टॉप हम्म। स्मोकिंग होता तो हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए था। बुशरा, मैंने तो सारी बात ही पूरी कर ली, तुमने तुमने मेरी बात ही नहीं समझी। मैम आपने जस्टिफाई किया दो चीजों को, हाँ। आपने हाँ। ओलिगोमेनोरी और बीएमआई को किया। आपने बोला इसके थ्रू हम्म। हम पीसीओएस का रोटेंडम क्राइटेरिया में पेशेंट को फिट करेंगे, फिट होगा तो हम डाइटरी हाँ। मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है मैम, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। समझी मैं पूरी। लेकिन हम्म। हैवी स्मोकर को तो ये सारी ये पाथवे तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हैवी स्मोकर को। तो अगर कोई भी बंदा हमारे साथ देखो, स्मोकिंग के साथ आता है और वो भी हैवी, आई नो, तो हम तो सबसे पहले उसको बोल रहे थे कि बस तुम रोको इसको। आई नो, बट दिस इज नॉट द हम्म, प्राइमरी कंसर्न ओनली। हमें सारी चीजें करनी है, और लेकिन आपको सी और ई में बेस्ट चूज करना है। पहले आप उसको उसको कंसीव, वो 4 साल से कंसीव करना चाह रही है। ठीक है। स्मोकिंग जो है ना, वो स्मोकिंग ठीक है, किसी हद तक उसकी एग क्वालिटी को खराब कर रहा होगा, बट इतना नहीं। स्मोकिंग इसको लेटर ऑन तंग करेगी। प्रेगनेंसी पे इसके बहुत बैड इफेक्ट्स होंगे। कंसीव करने में ये इतनी प्रॉब्लम फीमेल को नहीं करती, मेल का सीमेन क्वालिटी इफेक्ट होता है स्मोकिंग से। ठीक है मैम। ठीक है। समझ आ रही है। हम्म। सो सी इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर है। हम्म। ठीक है। स्मोकिंग लो बट वेट कराती है ना। हाँ। हाँ, लो बर्थ रेट ठीक कराती। है। ओके, किसी और को कोई ये वाली कंफ्यूजन है जो बुशरा को थी? किसी और को कोई कंसर्न? नहीं आगे डॉक्टर। चलें क्वेश्चन 9 पे। ओके। A 33-year-old woman is contemplating IVF for the third time. The patient is worried about the risk of developing ovarian cancer in future due to repeated administration of fertility drugs. Which of the following is correct? So it's regarding the side effects of IVF. Assisted reproductive medication increase incidence of ovarian malignancies developing at a younger age. Collective evidence denies any correlation between IVF drugs and an increase risk of ovarian cancer. Only female with BRCA1, BRCA2 mutation are at significantly higher risk of developing ovarian cancer following the use of fertility treatments. Recent evidence suggests an increase in benign ovarian lesions and a reduction in incidence of ovarian malignancies after the IVF treatment. Studies confirm the positive correlation between the fertility medicines and the incidence of ovarian cancer. हाँ जी, बता दो। बी। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल, बी फॉर बुशरा। ओके, बी फॉर बुशरा। बाकी सब लोग? क्वेश्चन बी ठीक है। ठीक है ना। ओवेरियन जी। कैंसर का कोई इस पे वो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, बच्चे में क्या होता है? बेबी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लाइक साइड इफेक्ट्स तो आर देयर। तो साइड इफेक्ट्स और कौन 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 से होते हैं आईवीएफ के, पता होना चाहिए तुम लोग को। ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज और और प्री एक्लेम्शिया, जीडीएम और Ovarian hyperstimulation syndrome। प्रीमेच्योरिटी हम्म, और टीटीएस, अगर मोनोकोरियोनिक है मैम वो सारे आ जाएंगे, बहुत आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जैसे ये कंसर्न है ना कैंसर का फीमेल में, ऐसे ही बेबी में भी कंसर्न है। लॉन्ग टर्म की बात करिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, वो बताइए आप मुझे। IVF के। मतलब
फ्यूचर जनरेशन में भी जो है ना आईवीएफ से जो होते हैं बेबीज, उनके अंदर भी जो है ना वो फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। एक मुझे ये याद आ रहा है। सोचो, और सोचो। डॉक्टर, लो बर्थ वेट की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। लो बर्थ वेट आपकी डिसेबिलिटीज की वजह से अभी कैंसर में आएगी। अभी ना मुझे वो याद नहीं आ रहा, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, एक मिनट। अम्म चलो मैं देखती हूँ, मैं तुम लोग को भेजती हूँ। देयर आर सम long term outcome of safety of IVF. Wait a minute. कैंसर एनामलीज की वजह से तो Okay, लर्निंग डिसेबिलिटीज okay, वगैरह। okay. मैं बता रही हूँ, रुको। It's from the recent NICE guideline. ठीक है। पहली रिकमेंडेशन कहते हैं कि गिव पीपल हु आर कंसीडरिंग IVF ट्रीटमेंट विद और विदाउट ICSI अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स इंक्लूडिंग के कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। ये तुम सबको पता है। मैम इन्फॉर्म दैट आपकी while absolute risk of मैम long-term adverse outcomes of IVF treatment with or without ICSI are low, are low, मैम a आपकी small, स्क्रीन शो नहीं हो रही। sorry, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं स्क्रीन तो आप मैंने शो ही नहीं की चंदा। नहीं, मैंने स्क्रीन, अच्छा क्योंकि मैं फोन में खोली थी, मैंने गाइडेंस फोन में जल्दी चीजें खुल ठीक है जाती ठीक हैं। रुको है ठीक है ठीक है ओके। एक मिनट, रुको मैं दिखाई देती हूँ, एक मिनट। हमसे इन्होंने क्या पूछा है? दे वो बोथ वेदर दे वांटेड टू नो द सेफ इम्प्रूवेबल बट विल नॉट अफेक्ट देयर फर्टिलिटी। देयर इट्स अबाउट द कपल। What is them? They should not exceed the equivalent of 14 minutes per 3 to 4 times alcohol in a day, unlikely to affect the quality of semen. Uh-uh. The maximum provision are 3 units per week. तो मुझे अपना फाइनल आंसर बता दो लड़कियों। मेल जो है वो अगर एक दिन में 2 भी पिएगा तो एक हफ्ते में 14 तक पी सकता है। हम्म। जितना थोड़ा मुझे ऐसे याद आ रही थी वो जी। फीमेल को कम अलाउ है जी। हफ्ते में। अब अब इसमें जो है ना, एक अब आई डोंट नो, ये पुरानी गाइडलाइन से ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है। मेल और फीमेल की रिकमेंडेशंस आर चेंज। इन्होंने यहाँ पे कपल की पूछी है, ठीक है। ये कपल की पूछ रहे हैं, हमें ओवरऑल कपल की नहीं बताएंगी। अकॉर्डिंग टू दिस, जहां से इन्होंने आंसर बनाया है, क्वेश्चन नंबर 14, they should not exceed the equivalent of 14 units of alcohol per week. It's they, couple. But in the new guideline, it's not about this. Let me check the reference. 13 चीफ मेडिकल ऑफिसर लॉरेंस 2016 की रिकमेंडेशन है। नाउ द नाइस गाइडलाइन से फॉर द फीमेल it should not be more than 1 to 2 units of alcohol. ठीक है, अगर वो 1 to 2 units ऑफ अल्कोहल पी लेती है तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट हर फर्टिलिटी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फीमेल। तुम लोग को अब आई एम सॉरी, मेरे लैपटॉप पे ये खुल नहीं रहा है गाइडलाइन। मैं तुम लोगों को फोन वाली बताती हूँ। अब आपको पता है कि वहाँ पे जेंडर्स की जो है वो अलग असाइनमेंट है, सो नाउ दे हैव चेंज द वर्डिंग इन द न्यू गाइडलाइन, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इन्फॉर्म द वुमेन एंड ट्रांस मैन एंड नॉन बाइनरी पीपल विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव टू बिकम प्रेग्नेंट, बेसिकली फीमेल के बारे में बात हो रही है, that drinking no more than 1 or 2 units of alcohol once or twice per week and avoiding episodes of intoxication reduces the risk of harming a developing fetus. ठीक है, समझ आ गई? दिस इज फॉर द फीमेल। फिर मेन के बारे में बोलते हैं, इन्फॉर्म मेन एंड ट्रांस वुमेन एंड नॉन बाइनरी पीपल विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब आदमी, in other words आदमी, that excessive alcohol intake is detrimental to semen quality. Drinking within the limits of weekly drinking guidance, कि हफ्ते में
14 यूनिट्स पर वीक वो पी सकते हैं इफ स्प्रेड अक्रॉस सेवरल डेज। इन 14 यूनिट्स को एक हफ्ते में वो डिवाइड करेंगे अप टू 2 यूनिट्स पर डे के हिसाब से। अगर वो पीते हैं तो वो एक हफ्ते में 14 यूनिट पी सकते हैं। इज अनलाइकली टू अफेक्ट द देयर सीमेन क्वालिटी। दिस रिकमेंडेशन इज फॉर मेल। द की इज डी, बट दिस डी इज नाउ फॉर मेल नॉट फॉर द फीमेल। फीमेल की लिमिट है 1 to 2, वंस और ट्वाइस पर वीक, बस, इससे ज्यादा नहीं। और आदमी को तो उन्होंने डेली अलाउ कर दिया। आर यू गेटिंग गर्ल्स? यू शुड नो दिस। जी। यस मैम। आपको इसको रटना नहीं है। दिस इज फॉर मेल। यानी कि पूरे वीक में 14 यूनिट्स पी सकते हैं हाँ हाँ मेल, जी, हाँ तो जी। पर डे वो 2 यूनिट लेंगे। yes, सही, ये तो भी याद हो गया। और ठीक है। फीमेल जो है वो 1 सिर्फ to 2 2। यूनिट्स ले सकती हैं, वन से ट्वाइस अ वीक। या एग्जैक्टली। तो फिर अब यहाँ हम की क्या होगी? यहाँ पे तो फिर स्प्लिट करके बताया है, अभी तो कपल का तो बताया ही नहीं। तो यही बता रही हूँ, इसकी की डी है। आपको नई रिकमेंडेशंस पता होनी चाहिए, दैट्स इट, बस खत्म। इससे ज्यादा इस पे बहस करना ही फजूल है। ठीक है। ठीक है। चेंज द दिस थिंग इन द और एराटा। बुशरा, ये एराटा में तुम ये लिख लेना कि तो डी है बट रिकमेंडेशंस हैव बीन चेंज्ड। दिस इज नाउ फॉर मेल। सही। चलो बस ओके एक मैम। क्वेश्चन और हम पढ़ लेते हैं, फिर हम अल्लाह हाफिज करते हैं। An overseas couple attends for consultation regarding pregnancy. She is 32 year old with 4 previous pregnancies and 1 living child. Their last pregnancy ended with an intrauterine fetal demise at 26 weeks due to severe RH immunization. What would be your management? Advise amniocentesis at 24 weeks in any future pregnancy. Advise spontaneous pregnancy and CVS with termination of RH positive fetus. Advise the use of donor sperm for RH negative matched male. Advise the couple to go for IVS and PGD of embryos. Check the husband genotype. Check the husband genotype. Rest of people या वो तो उसका ब्लड ग्रुप पुराने क्या है, उसकी गाइडलाइंस। जीनोटाइप ही भी। हाँ हाँ जी। हाँ। ठीक है। होमोजाइगस है या हाँ जी, हेटेरोजाइगस है? होमो ठीक है हेट्रो मैम। के हिसाब से हमको मैनेज करना होता है। ठीक है। हेट्रो है तो 50% चांसेस है कि बच्चे को होगा, आरएच इम्यूनाइजेशन डेवलप होगा। ठीक है। और अगर नहीं, मोर देन 50 है, सॉरी होमो है, तो देन 100% के बेबी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। सही है। तो यहाँ तक